Hello students, welcome again to another session of English class. Today we are going to deal with a very important topic of grammar, subject-verb agreement, which is also called subject-verb concord. Before we move on in detail about subject-verb agreement, let us first talk about what is subject and verb in the sentence and how do we identify subject and verb in any sentence. Further, we are going to talk about what is subject-verb agreement, followed by the basic rules and other rules of subject-verb agreement. So, taking up the question, what is a subject? कर्ता किसे कहते हैं? Person, place, thing or idea that is doing something, that is performing an action or being something is the subject. In simple words, we can say doer of an action. कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है. Now verb हिंदी में से हम क्रिया कहते हैं. Action performed by the subject. Subject जो कार्य करेगा उसे हम क्या कहते हैं? Verb कहते हैं. Action performed by the subject or state of being is known as the verb. Let us take up two examples to understand this. Two examples which I've written here. Ajay plays cricket. The fire must be extinguished. Let us make an analysis of this sentence. Ajay plays cricket. Now, in order to identify the subject, जिसे हम कर्ता कहते हैं, हम क्या प्रश्न पूछेंगे? We'll ask the question who is performing the action of playing. So you get the answer Ajay. So Ajay becomes the subject. Now to identify the verb, we're going to ask the question what. We're going to ask the question what. That is, what subject is performing or doing. What is the subject doing? It is playing. So playing is the verb. You have the subject and the verb. और एक और बात आप याद रखेंगे कि subject हमेशा verb के पहले आता है, जबकि object verb के बाद आता है. ये आपको ध्यान रखना है. जब हम voice पढ़ेंगे उसमें ये काम की बात है. Next example we'll see the fire must be extinguished. Extinguished यानी बुझा देना. जैसे कि आपने fire extinguisher का नाम सुना होगा. The fire must be extinguished. Now ask the question. What must be extinguished? The answer is fire. So fire becomes the subject and must is the verb. यहाँ एक और तरीका हम देखते हैं कि subject को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है. सबसे पहले आपने क्या करना है? verb को ढूंढना है sentence में. Once the verb in the sentence is identified or isolated or determined, it becomes very easy to find out the subject. उसके बाद क्या करना है? जैसे ही आपने verb ढूंढ लिया, you are going to frame a question. Frame a question by placing who or what before the verb, and you can easily find out the subject. Say for example, हमने यहाँ क्या बोला? Must हमारा verb है. So उसके आगे हमने लिख रखा what. What must be extinguished? Fire must be extinguished. So this is the subject and verb. So you got to know कि subject क्या होता है. Doer of an action is the subject and whatever action is performed by the subject is the verb. Subject को sentence में ढूंढने के लिए सबसे पहले हमने verb ढूंढना है. उसके बाद उस verb के आगे who या what लगा के question पूछेंगे तो आपको अपने आप subject मिल जाएगा. ठीक है. कुछ और एग्जाम्पल्स हम यहाँ लेते हैं. अब देखिए, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कैन बी अ नाउन, अ नेमिंग वर्ड, संज्ञा, जैसे कि अजय हमने बोला. इट कैन बी अ प्रोनाउन. प्रो, रिमेंबर प्रो इज अ रूट वर्ड, समथिंग दैट कम्स बिफोर और इंस्टेड ऑफ और फॉर इसका मतलब होता है. सो instead of noun, a word which is used instead of noun is known as a pronoun. तो अजय के लिए हमने क्या word use करेंगे? pronoun he. एक और बात यहाँ ध्यान रखनी है कि ये तो हुए दोनों parts of speech. ऐसे all together 9 parts of speech हमने एक सेशन में पढ़े हैं. सब्जेक्ट डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं. डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी रहते ये वर्ब है मगर दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का काम करते हैं. इन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं. तो दो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो कि किसका काम करते हैं? वर्बल नाउन का काम करते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं. एक होता है जेरेंड. जेरेंड यानी V1 प्लस ing और इन्फिनेटिव यानी टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब V1, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. देखिए, रीडिंग इज माई हॉबी. फिर इज आपका वर्ब है, वर्ब हमने ढूंढा, इसके आगे हमने क्वेश्चन लगा दिया व्हाट से. व्हाट इज माई हॉबी? आंसर मिल गया आपको
रीडिंग। तो ये रीड एक्चुअल वर्ड क्या है, वर्ब है रीड, उसके आगे हमने आईएनजी लगा दिया, और जब ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा तो किसका काम कर रहा है, नाउन की जगह पे आ गया तो मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से इन्फिनेटिव का एग्जांपल हम देखते हैं, टू रीड इज माय हॉबी, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, इज हमारा वर्ब है, व्हाट इज माय हॉबी, टू रीड इज माय हॉबी, और टू रीड क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, यहाँ वो नाउन की जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इसके अलावा ये भी याद रखना है कि सब्जेक्ट आपका पर्सनल प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, और इट कैन बी बेस्ड ऑन काउंट ऑल्सो। जब हम बात करेंगे सब्जेक्ट में बी इन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम क्या बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। और जब हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस हैं, एंड पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर थ्री पर्सन्स, दीज थ्री पर्सन्स आर फर्स्ट पर्सन, दैट इज पर्सन स्पीकिंग, जो बात कर रहा है, सिंगुलर में आई, प्लूरल में बी, जिससे बात कर रहे हैं, पर्सन स्पोकन टू, सिंगुलर में भी यू, प्लूरल में भी यू, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन स्पोकन अबाउट, सिंगुलर में ही, शी, इट, और प्लूरल में दे। तो ये तो हुआ सब्जेक्ट, जब बेस्ड ऑन पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पर्सन होगा। बेस्ड ऑन काउंट, काउंट यानी नंबर, काउंट यानी नंबर, सब्जेक्ट, और बेस्ड ऑन काउंट सब्जेक्ट में भी ईदर सिंगुलर यानी एक, वन, विच इज कॉल्ड एक वचन, और सिंगुलर लाइक गर्ल, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, गर्ल, I, you, he, she, it, singular pronouns. काउंट के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, प्लूरल यानी मेनी, मोर देन वन, बहुवचन, जैसे गर्ल का गर्ल्स, आई का वी, यू का यू, ही शी इट का दे। तो एक और बात हमने जानी कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या वर्बल नाउन्स यानी जेरेंड या इंफिनिटिव होगा, बेस्ड ऑन पॉइंट ऑफ व्यू यानी बेस्ड ऑन पर्सन, सब्जेक्ट में भी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड बेस्ड ऑन काउंट, और यहाँ याद रखेंगे काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट का मतलब हम यहाँ लेंगे नंबर भी हो सकता है, काउंट का मतलब नंबर भी हो सकता है, सब्जेक्ट में भी सिंगुलर और प्लूरल। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आ गया मेन टॉपिक, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। when we make sentences in English, और दूसरी भाषा में भी हम subject जब बनाते हैं, every English sentence has a subject and a verb. So subject and verb play a very integral part in a sentence. Now, what is the meaning of subject verb agreement? Subject verb agreement means that the subject and the verb must be in the correct form. इसके मायने क्या? For making a sentence grammatically correct, a verb must agree with its subject in number and person. अभी मैंने आपको समझाया था, देखिए नंबर यानी based on count, it can be singular or plural, person यानी based on point of view, first person, second person, third person. So verb must agree with its subject in number and person. One of the basic rules of subject verb agreement is that is based on number. A singular subject takes a singular verb. एक वचन अगर आपका कर्ता होगा तो एक वचन ही क्रिया होगी. And a plural subject takes a plural verb. अगर आपका कर्ता बहुवचन में है तो उसका क्रिया भी किसमें होगी, बहुवचन में होगी. Here you need to remember that this rule is applied. Singular subject with singular verb, plural subject takes a plural verb. This is applicable when the subject is in third person. Let us understand with the help of an example. अभी देखेंगे. The dog chases the cat. Now, where is your verb? Verb is chases. So, verb के आगे क्या लगाते हैं हम? What या who. So, who chases the cat? The dog. So, dog is your subject as well as a noun. Now, what is a noun? Noun means a name. So, here dog is the name of an animal. So, it is the subject and it is singular. अगर यहाँ s नहीं लिखा दिख रहा है मतलब noun आपका एक वचन है, singular है. तो रूल हमने क्या पढ़ा? Singular subject, noun without s takes a singular verb. और verb का singular हमेशा याद रखना कैसे बनाते हैं, v1 plus s या es, verb के साथ s या es लगा के. तो singular subject dog takes a singular verb chases.
right? Just contrary is the rule. Next, in the next example, the dogs chase the cat. अब हमने क्या किया, इस सिंगुलर डॉग को प्लूरल में बदल दिया, क्या लगा के, एस लगा के. तो जब आपका सब्जेक्ट, तो डॉग क्या है आपका सब्जेक्ट, व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज आल्सो प्लूरल. मगर वर्ब का प्लूरल कैसे बनता है, बिना एस के. याद रखेंगे, नाउन का प्लूरल एस या ई एस लगा के बनता है, जबकि वर्ब का सिंगुलर एस या ई एस लगा के बनता है. तो हमने क्या देखा कि we notice that nouns and verbs behave in the opposite ways. ठीक है, singular noun dog becomes dogs in the plural, noun plus s, right? But the verb has an s in the singular form, जबकि verb का singular हम s लगा के बनाते हैं. और verb का plural क्या होता है, जब s नहीं लगा होता. तो यहां देखेंगे एग्जाम्पल, हम नाउन का हमने प्लूरल कैसे बनाया, गर्ल, एस लगा के गर्ल्स, बॉक्स, BOXES, नाउन का प्लूरल बन गया. वर्ब का सिंगुलर कैसे बनाया, रीड, रीड्स, गो, गोज, फ्लाई, फ्लाइज, FLIES, डू, डस. हमेशा याद रखना, डू प्लूरल होता है, डस सिंगुलर होता है, गो प्लूरल होगा, गोज सिंगुलर होगा. ठीक है. सो मूविंग फर्दर, हियर वी हैव सम मोर एग्जांपल्स. इस तरफ के जितने जो एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब है. वर्ब का सिंगुलर कैसे बनाते हैं, एस या ई एस लगा के. प्लूरल सब्जेक्ट मतलब नाउन के साथ एस लगा है तो प्लूरल वर्ब लेगा, मतलब बिना एस का वर्ब लेगा. दैट बॉय वॉक्स टू स्कूल, एक लड़का. ठीक है. सो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, दोज बॉयज वॉक टू स्कूल. यहां मैं आपको बात बता दूं, ये दैट और दोज आप जो देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. कौन कौन से हैं, दिस, दैट, दीज, दोज. दिस का मतलब होता है नियर सिंगुलर, पास का एक इज दिस, दूर का एक फार सिंगुलर इज दैट, पास के बहुत सारे नियर प्लूरल दीज, दूर के बहुत सारे फार many, that is plural, it is those. अब देखेंगे, this car goes fast, singular car है तो es, goes. These cars go fast. I'll read out the examples. The girl likes playing cricket, singular, singular subject, singular verb with s. The girls like playing cricket. My grandfather has a big house, my grandparents have a big house. So सिंगुलर नाउन्स कौन कौन से यहाँ पे, बॉय, कार, गर्ल, ग्रैंडफादर. द सिंगुलर वर्ब यहाँ हम देख रहे हैं, सिंगुलर नाउन के साथ जो भी वर्ब लगे हैं सबके साथ एस या ई एस लगा हुआ है, वॉक्स, गोज, हैव्स. एंड व्हेन वी लुक एट द प्लूरल्स, इट इज जस्ट, द रूल इज जस्ट द रिवर्स, इट्स द रिवर्स्ड. द प्लूरल नाउन्स ऑल हैव एस एट द एंड. प्लूरल नाउन्स बोल रही हूँ, एस उनके एंड में रहेगा. और प्लूरल वर्ब कैसे बनेगा, बिना एस के, जैसे वॉक, गो, लाइक. ओके, हैव तो है. इसके अलावा एक और बात आपने याद नोट डाउन करनी है कि कुछ इर्रेगुलर प्लूरल्स भी होते हैं. इर्रेगुलर प्लूरल्स यानी जब हम बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ बोला कि दैट बॉय वॉक्स टू स्कूल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट बॉय हम क्या बोलते हैं, दैट चाइल्ड वॉक्स टू स्कूल. अब जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि दैट चाइल्ड्स, ऐसा नहीं बोलेंगे. हम कैसे बोलेंगे, दोज चिल्ड्रन, नॉट चाइल्ड्स, वॉक टू स्कूल. तो जैसे हमने इसको चिल्ड्रन में बदला, प्लूरल नाउन हो गया, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, यानी कि वर्ब बिना एस के इज अ प्लूरल वर्ब. तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. और याद रखना है, नाउन का प्लूरल एस या ई एस लगा के बनता है, जबकि वर्ब का सिंगुलर एस या ई एस लगा के बनता है, और वर्ब का प्लूरल बिना एस के होता है. I hope you have understood what is a subject, what is a verb in a sentence, how to identify, and the first basic rule of subject verb agreement based on number. Singular subject takes a singular verb and plural subject takes a plural verb. We'll continue with the chapter in the next lecture. Thank you so much.